Rajmata to say a few words. Members of various organizations and parties, Vijay Uncle Babu amar colleague chilo যত আমার ত্রিপুরার প্রিয়তা বাসী আছেন এখানে, আমি অনেক দিন পরে একটা স্পিচ দিতে আসছি। এত বেশি কাজ করেছি আগে, that मेरे पास इतना मटेरियल है महाराजा के टाइम से कि आप लोगों को, जो आप पढ़े लिखे हैं, जो आप हिंदी समझते हैं, बंगाली भी समझते हैं, और हमको आदत है अपने आप को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि जो हम अभी यहाँ बोलेंगे, यहाँ पर स्टेट इंटेलिजेंस, आर्मी का इंटेलिजेंस किस ढंग से दिल्ली को हमारी बात पहुंचाएगा, किस ढंग से समझाएगा, वो मेरा ड्यूटी है। क्योंकि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, महाराजा साहब भी थे, मेरे हस्बैंड, और मैं असेंबली में भी थी। हमने जो जो काम आपके लिए किया, जो जो हमने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, जो जो 1950 से भारत सरकार ने एक स्टैंड लिया था कि त्रिपुरा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और 1995 में इनर लाइन परमिट, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट उठाया गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी से, और जो जो हमारे सामने डिबेट करना चाहते हैं, मैं उनको अपना जवाब दे सकती हूं। त्रिपुरा में इनर लाइन परमिट नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड था। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ट्राइबल रिजर्व था। जब लोग अंदर आने लगे, भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट इंटेलिजेंस को, भारत के डिफेंस फोर्सेस को वहां पर इलीगल माइग्रेंट्स को आने नहीं देना चाहिए था, और सरकार को उनको जमीन नहीं देना चाहिए था। हमारे संविधान में ट्राइबल्स के जमीनों को प्रोटेक्शन दिया गया है। दशरथ बाबू also raised the same issue. Tribal lands cannot be alienated. How did the government of India, how did the intelligence forces allow the illegal migrants to come in and give them land in the autonomous district? That is my first legal question. শুধু আমি মাত্র লিখে নিয়ে আমি হোম কমিটিতে যাইতে তো যারা যাইতে চায়। প্রথম এটা আমার কথা, ইন্ডিয়া ইজ আ সফট কান্ট্রি। আমার দেশে সবাই আসতে পারে, তবে ত্রিপুরাতে আমরা চাই ভোট। আমার কোন বাঙালির বিরুদ্ধে, লিগাল মাইগ্রেন্টস এর বিরুদ্ধে কোনো কথা নাই ওনার বিরুদ্ধে। তবে যদি আবার ত্রিপুরাকে ভোট ব্যাংক খেলার জন্য, ভোটের জন্য ভাজপা বাইরের লোককে নিয়ে আসবে, আমি সেটা স্বীকার করব না।
ভবিষ্যতে অনেক হিন্দুরা আছে, অনেক হিন্দুরা ভারত ছেড়ে চাকরি নিতে, বাড়ি বানাইতে, একটা শিক্ষা প্রাপ্ত করে আমেরিকা চলে গেছে, অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে, আফ্রিকা চলে গেছে, আমেরিকা চলে গেছে, ব্রিটেন চলে গেছে। আপনার সবাই ইন্ডিয়াকে যদি ভারতে নিয়ে আসেন, আপনার ছেলে মেয়ে, আপনার জায়গা জমিন ওরা দখল যদি করে নেয়, আপনারা কি এটা মানবেন? Will Amit Shah, will the Prime Minister of India tell me how can he, without repealing the Autonomous District Council, সব জায়গাতে তুমি সারা ভারতের যেখানে ট্রাইবাল রিজার্ভ আছে, ছত্তিশগড়ে আছে, মধ্যপ্রদেশের আছে, ঝাড়খণ্ডে আছে, আপনার নাগাল্যান্ডের আছে অলরেডি ট্রাইবাল স্টেট, মণিপুরের আছে, ত্রিপুরাতে আছেই। 1940 থেকে আমরা ট্রাইবাল রিজার্ভ মহারাজা বীর বিক্রম বানিয়েছিলেন। কেন বানিয়েছিলেন? কেন উনি দেখেছেন আমেরিকাতে যে দুর্দশা আদিবাসীর যারা ওখানে থাকে, রেড ইন্ডিয়ান, উনার এরকমের অবস্থা, তারা একদম গরিব নিহত্তা। আজকেও সে প্রবলেম আমেরিকাতে আছে। তো সারা ভারতে যত এসটি, যত যা এসটি যে যে রাজ্যতে আছে, সব জায়গাতে আপনারা ভর্তি করে দেন বিদেশিকে। এই প্রশ্ন যারা পড়ালেখা করেছে, যারা এমএ বিএ করে রিসার্চ করছেন, যারা পার্টি পলিটিক্স করছেন, বলিস সারা ভারতে রিমুভ অল রিজার্ভেশন ফর অল ট্রাইবাল areas, all autonomous areas. Why only Tripura should be targeted? কেন শুধু ত্রিপুরাতে আপনারা বিশেষ করে একটা ভাজপা গভর্নমেন্ট বানাবার জন্য আপনারা সিটিজেনশিপ বিল আপনি নিয়ে আসছেন? Why not for Jharkhand? Why not for Madhya Pradesh? Why not for Nagaland? Why not for Mizoram? Why not for Assam? অনেক জায়গা আছে, ছোট ছোট জায়গা আছে যেখানে আমরা আদিবাসী, সমস্ত ভারতের অধিবাসীকে একটা সুরক্ষিত জায়গা আছে। এটা হলো মূল প্রশ্ন। আমি চিঠি লিখেছিলাম 1996 ইন্দ্রজিৎ গুপ্তাকে, হোম মিনিস্ট্রি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। আই ওয়ান্ট টু নো, আমি জানতে চাই কতজন ত্রিপুরার ট্রাইবালরা এখন ভূমিহীন, ডিউ টু কিসের কারণে? বা দ্য এলিয়েশন অফ ল্যান্ড ডিউ টু গভর্নমেন্ট প্রজেক্টস। তেলিয়া বরাজ হলো, ডুঙ্গুর হলো, আপনার অনেক জায়গা রেলওয়ে লাইন হলো। কতজন ট্রাইবালকে ভূমিহীন করা হয়েছে? কতজন ঝুমিয়ে আছে যারাকে ক্ষতিপূর্ণ দেওয়া হয়নি? আপনার পড়ালেখা করে কি লাভ? হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ ইউর এডুকেশন? আপনার যদি এটাই না বুঝেন, এটা কোন ভোট ব্যাংক পলিটিক্স আমার জন্য না। আমার ভারত মাকে আমি নমস্কার করি। ভারত আমার মা। এই হাতে আমরা জায়গা দিয়েছি, সমস্ত ভারতের সঙ্গে আমরা মিশে গেছি। প্রায় about the same type যত জায়গায় ত্রিপুরাতে আছে, 4 ডিস্ট্রিক্ট আমরা বাংলাদেশের আছে, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট এবং ব্রিটিশ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট। ভারতের সরকার এটা মানল, যে সময় বিভাজন হয়েছে পাকিস্তান মানল, এবং বর্তমান বাংলাদেশও মানে।
কেন এটা চুক্তি হয়েছিল মহারানী রাজমাতার কাঞ্চন প্রভা দেবী থেকে সাইন করা হয়েছে। ইট ইজ মাই প্রাইভেট প্রপার্টি, এটা আমার নিজস্ব সম্পদ করে পাকিস্তান মেনেছে। আমরা কিনেছি এই 1772 কি ওর আগে সম্ভব 50,000 টাকা দিয়ে আমরা কিনেছি চট্টগ্রাম, আবার ফিরে কিনতে হয়েছে। শ্রীহট সিলহেটকে কিনেছি 48,000 রুপিস, আমরা কিনেছি নোয়াখালী 48,000 রুপিস দিয়ে, আমরা কিনেছি কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এরিয়া 50,000 টাকা দিয়ে। কেন ত্রিপুরার অনেকবার আন্ধ্র সীমা বার্মা পর্যন্ত গেল, এদিকে সুন্দরবন দিকে গেল, ওই দিকে আমরা আহোম রাজার পর্যন্ত জায়গা থেকে আমরা নিয়েছি। যে সময়ে ভারতের আকবর আইনি বলছে ভারতের 9 কোটি संख्या, ওই সময় उस वक्त जिस वक्त भारत में 9 करोड़ संख्या थी, त्रिपुरा राजा के पास 5,000 नौका था, 120 लाख 120 लाख सेना थी, इन्फेंट्री थी। आपके ऐसे इतिहास को आप बहा दे रहे हैं। त्रिपुरा सा का मतलब क्या है? जितने हमारे त्रिपुरा के लोग हैं, हमारी जाति आदिवासी है, हम इसको मानते हैं, मगर हमारे पास पुराने अच्छे बंगाली भी हैं। मगर अब आप रोज वोट के लिए नए नए आदमी को घुसाएंगे, हम इसको मानने को राजी नहीं है। 1980 दंगा, दिनेश सिंह कमेटी हुआ, हम पॉलिटिक्स में नहीं थे, मेरे छोटा सा बच्चा उस वक्त वृद्ध, अभी महाराजा 1.5 साल का, उस समय 1980 का दंगा हुआ, निपेन बाबू ने झूठ बोला, 19 मई में मेरे विरुद्ध बोला कि महारानी उग्रपंथी है, वो शिरोम जाति है, मिशनरी लोगों के साथ मिलती है और उग्रवाद लोगों से मिलती है। ऐसा झूठ जब महाराज आए 20 तारीख को हमसे कहा, हंस के कहा तुम तो अब न्यूज में हो गए। नाइट अखिल देवनाथ आज भी हमको याद है, आंध्रा बंगाली का जो मूवमेंट किया, जिसने कांचनपुर में खून कराया, जिसने पूरे त्रिपुरा में आग लगाया, वो सीपीएम पार्टी ने हाथ मिलाया। किसके साथ मिलाया? आंध्रा बंगाली के साथ। आंध्रा बंगाली का मतलब क्या है? हम बंगाली, बाकी तुम लोग सब बाहर के। यह परिभाषा, यह कम्युनल नहीं है, यह क्या प्रेम की भाषा है? हमको आज भी मालूम है कौन कौन लीडर जो अभी बीजेपी में है, 11 ट्राइबल्स की हत्या यही मोहनपुर में किया। जैसे कि सरदारों को एंटी सिख राइट्स हुए 1984 में, अभी सज्जन कुमार को जेल हो गया, जगदीश टाइटलर, ये लोग सब घबराए हुए। हम जानते हैं कौन पुलिस वाला, कौन अभी का जो एमएलए या मंत्री या जो भी है, किसने उचकानी दिया, ये है सत्य। मुझे कभी भी गद्दी की लालच नहीं थी और मैं समझती हूं सत्य से ज्यादा बड़ा ये हमारा धर्म हमको समझाता है, ये हमारे माता पिता ने समझाया, क्योंकि अगर देश है तो सब कुछ है, देश नहीं है तो कुछ नहीं है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों को समझाना मेरा धर्म है। हम नहीं
समझाएंगे तो आपको कोई नहीं बताएगा। हम रेवेन्यू के मिनिस्टर थे, हमने इंट्रोड्यूस किया ट्राइबल कस्टमरी पर्सनल लॉ, जातीय, धार्मिक एवं सामाजिक आइन। हमने लाया 6th अमेंडमेंट ऑफ ट्राइबल एलिएनेटेड लैंड, और उसको सीपीएम ने उसको रही यूनानिमसली हम लोगों ने पास किया था। सीपीएम ने, हमने, सबने, कांग्रेस ने मिलके, मगर 1994-96 में उसको डाइल्यूट किया। उस बिल को डाइल्यूट करके इन लोगों ने लाया। तो कहां से प्रोटेक्शन? कौन सा प्रोटेक्शन? किसी का सिर में लिखा है कि वो टेररिस्ट है? नहीं। बांग्लादेश से हमारा बहुत प्यार है। शेख हसीना मेरी बंधु है, मेरी छोटी बहन है। शेख मुजीब को हम सम्मान देते हैं, मगर त्रिपुरा को दांव में लगा के त्रिपुरा के इंटरेस्ट को हम खोना चाहे अगर, वो हम नहीं करेंगे। मैं तैयार हूं, आ जाए नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम तैयार हैं। कोई भी भाजपा का मंत्री हमारे साथ एक मंच में, नेशनल मंच में हमसे बहस करे। मेरे पास सब कागज है। ये जो कागज है, ये हमारी तपस्या है, ये हमारा काम है। इसमें हमारे महाराज स्वर्गीय वीर विक्रम ने बहुत काम किया। दशरथ बाबू ने कहा है हटाओ, उन्होंने भी कहा, ये नहीं कि उन्होंने प्रश्न नहीं किया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपके लिए, देश के लिए आपको नहीं लड़ना चाहिए? आप भेजिए अपने एमएलए को, बोलिए अगर तुम हम लोगों का हित नहीं देख सकते, भारत माता का हित नहीं देख सकते, तो हम लोग बहिष्कार करेंगे तुम्हारा। हम तुम लोगों को नहीं जीतेंगे। Now for the media, I would like the media not to twist, not to tell lies, not to misguide the public. This is your profession, this is your religion, that you will report honestly, सच्चे भावनाओं से, सच से आप इसको रिपोर्टिंग करेंगे। जो ट्राइबल रिजर्व था वीर विक्रम महाराज का बनाया हुआ 1995 तक, आपने कैसे वहां पर इस फॉरेस्ट बॉर्डर में लोगों को आपने बैठाया? किस आइन से? अब जब एक बार किसी को आप बैठा देते हैं, हमारी जमीन खुद एनक्रोच हो जाती है। आप कहते नहीं, आइन अनुसार नहीं। आपका पूरा पीडब्ल्यूडी रोड, आपका जितना रास्ता है, वहां एक तुलसी रख देता है आदमी, जमीन एनक्रोच कर लेता है, दुकान बना लेता है, और डरता है एमएलए, अरे कैसे भगाएगा इसको, हमारा वोट चला जाएगा। बंगाली है तो बंगाली एरिया में डरेगा, ट्राइबल में तो इतना है नहीं बिजनेस माइंड। तो ये प्रैक्टिकल सत्य, इसको मानिए। हमारे देश के अंदर बहुत से हम लोग बाहर के लोग को लाए हैं, मगर खाली त्रिपुरा को ही केंद्र मत करिए। त्रिपुरा का डेमोग्राफी, त्रिपुरा की संख्या, त्रिपुरा ट्राइबल्स की संख्या को कमा के आपने बंगाली को भी बेवकूफ बनाया। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है। हमारा त्रिपुरा का कब बना कभी चीफ मिनिस्टर? अभी बना है जिष्णु भरता डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। हमारा जो भी आया बाहर से आया वही बना चीफ मिनिस्टर। जो बाहर से आया
2 साल के अंदर मंत्री बन गया। कभी आपने सोचा, कभी प्रश्न किया, आपने नेताओं को प्रश्न किया? कोई भी देश में कहीं भी बाहर से आए हुए आदमी एमएलए नहीं बन पाते जब तक 5 साल नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली इट इज आवर टाइम। बट मेरा संदेश है, जो कल हम माधवबाड़ी में गए, ये जो बच्चों को हमने देखा, मुझे क्या पॉलिटिक्स करना, हमको आप क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? हमको प्यारी तो दे सकते हैं, सम्मान ही दे सकते हैं, और इससे बड़ा कोई चीज नहीं। हम भी तो भूमिहीन हैं। जब युद्ध हुआ भारत का और पाकिस्तान का, मेरे हस्बैंड ने, मेरा महाराजा ने, किरीट विक्रम महाराजा ने 1965 में बहुत से बांग्लादेशी आए। उस वक्त आर्मी को पूरा जमीन दिया बिना लिखा पढ़ी किए। 1971 का वॉर हुआ, हम लोगों ने उस जमीन को दिया। हम लोग को 6 रुपया 5 रुपया पर एकड़ मिलता था। ये हम रिकॉर्ड के लिए आपको बोल रहे हैं। मेरे पास आइए, कागज लीजिए, डिफेंस मिनिस्ट्री में चलिए, दिल्ली चलिए, हम आपको दिखा देंगे। ये है सत्य। इस सत्य को हम स्वीकार करना पड़ेगा, हमको इस झूठ को भी स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे पूजनीय महाराजा वीर विक्रम का एक स्टैचू बना दिया। किसका? फाइबर ग्लास। कहीं कोई फाइबर ग्लास का बनाते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाकी जो जो पूर्व बंग के नेता है, उनका आपने कैसा बनाया? ब्रॉन्ज का बनाया, लोहा का बनाया। आप अगर सम्मान नहीं दे सकते, मत करिए। ये लोग कहते हैं उनका चेहरा भी वैसे ही नहीं, हम जानते हैं। हमसे पूछा भी नहीं गया व्हाट इज ए फाइबर ग्लास, टेम्पररी। वही सुदीप राय बर्मन, जिसका बाबा कुमिल्ला से आया, हमारा वकील भी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। उनके लड़के ने असेंबली में लाया कि ये अगरतला एयरपोर्ट बनना चाहिए।